every accused is presumed to be innocent until they are proved guilty at a trial, which means that the prosecution is not going to be completed within, say, 1 year or 6 months or 3 years. The accused is entitled to bail. देश के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जयपुर में एक ऐसा बयान दिया जिसने कानून के गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। छात्र नेता उमर खालिद की जमानत के सवाल पर पूर्व सीजीआई ने साफ कर दिया कि दोष सिद्धि से पहले जमानत मिलना नागरिक का अधिकार है। आखिर क्यों पूर्व सीजीआई को यह कहना पड़ा कि निचली अदालतें जमानत देने से डर रही हैं और अपने कार्यकाल का उन्हें क्या सबसे बड़ा मलाल रह गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर जब वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने उमर खालिद की जमानत का मुद्दा उठाया तो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा, हमारा कानून इस सिद्धांत पर चलता है कि जब तक दोष साबित ना हो जाए आरोपी निर्दोष है। पूर्व सीजीआई ने साफ किया कि जमानत केवल 3 शर्तों पर रोकी जानी चाहिए। अगर आरोपी के भागने का डर हो, अगर वो सबूतों से छेड़छाड़ करे या फिर समाज में लौटकर दोबारा अपराध करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ये 3 कारण नहीं है तो जमानत देनी ही होगी। उन्होंने ये भी माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अदालतों को गहराई से जांच करनी चाहिए ताकि लोग सालों तक जेल में ना सड़े। पूर्व सीजीआई ने भारतीय न्याय व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई भी उजागर की। उन्होंने चिंता जताई कि देश की जिला और सत्र अदालतें जमानत देने से कतरा रही हैं। चंद्रचूड़ ने कहा, जजों को डर लगता है कि अगर उन्होंने जमानत दी तो उनकी खुद की ईमानदारी और निष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे। यही वजह है कि जमानत के छोटे छोटे मामले भी अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। I now speak as a citizen and not as a judge. Absolutely. I also begin by telling you that you can have the wisdom of hindsight, and it's easy to have the wisdom of hindsight because I've left the court. But on this particular case, let me make just the law as demystified as possible and then answer the question. Okay. Bail before conviction should be a matter of right because our law is founded on one presumption, and that's the presumption of innocence. That is, every accused is presumed to be innocent until they are proved guilty at a trial. The second, pre-trial bail cannot be a form of punishment. Because if someone is in jail for, say, 5 years or 7 years as an under trial and then is finally acquitted, how do you compensate for the lost time? When do you deny bail to an accused? I'll give you a very simple example and then answer your question. Okay, go ahead. Suppose you have a serial rapist and a murderer who has been arrested on the allegation that that person has committed, say, 6 or 7 rapes and murders. There's a danger that if you let that person out into society, that person might repeat the offense. Yep. So this is a classic case where you would deny bail, where there is a danger that a person after being released on bail would commit the same offense. Second, a second exception, where a person on being released on bail wouldn't be available to face trial, that is, leave the Indian jurisdiction and escape out. That's a valid reason to deny bail. The third, a person who would tamper with evidence at the trial. If these 3 exceptions are not made out, bail has to be the rule. Now, the problem which we are facing today is this. A lot of our laws, particularly those relating to national security, have turned the law on its head by substituting the presumption of innocence with almost a presumption of guilt. Now, what does a court do when the state says national security is involved? And there I believe that the court is duty-bound to carefully scrutinize as to whether national security is involved, and second, whether the detention of the accused is proportional to the plea for national security. जजों की नियुक्ति वाले कोलेजियम सिस्टम पर भी उन्होंने बड़ा सुझाव दिया। पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने कहा कि कोलेजियम में अब नागरिक संस्थाओं के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। वहीं अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने एक बड़ा अफसोस भी जाहिर किया। उन्होंने कहा, आजादी के 76 साल बाद भी हम वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने इसके लिए कानून बदलने की पुरजोर वकालत की। अपने कार्यकाल के फैसलों पर बात करते हुए उन्होंने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन, समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे फैसलों को परिवर्तनकारी बताया। रिटायरमेंट के बाद किसी पद को स्वीकार करने के सवाल पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वो एक आम नागरिक की तरह जिंदगी का आनंद ले रहे हैं और किसी पद की दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अदालती कार्यवाही को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित करने की पहल पर भी खुशी जाहिर की।
रिटायरमेंट के बाद वो फिलहाल आम नागरिक की जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन उनके ये सुझाव देश के न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा आईना है। आपको क्या लगता है कि निचली अदालतों में जमानत प्रक्रिया आसान होनी चाहिए? और उमर खालिद की जमानत मामले पर भी आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।